Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. In this video, we will discuss the basics of CNC machine programming, which is also called G-code programming or part programming. So let me start the presentation. In the beginning, there are a few slides for your reference. It is the theory slides in which I have discussed development of manufacturing machinery from conventional to the present technology. So just go through these slides. These are only the reference theory side of the CNC machines. Our objective is basically to discuss the CNC machine programs and the codes that will be used to define the relative moves between the workpiece and the cutter. So as far as the gradual development of CNC technology, of course, initially conventional machines was used for machining operations. Then the next step was the numerical control system, known as MC. Numerical control system is basically mechanical type of automation in which the different slides of the equipments were automated mechanically with the use of gears and racks, etc. Then next step was the direct numerical control system, DNC. उसके बाद फिर computer numerical control system and distributed numerical control system. So this is the present technology in which either you will see a CNC individual equipment or maybe 3 or 4 CNC machines integrated in a group. So that is known as basically distributed numerical control system. So what you will do in CNC program is that these movements of the machine, or rather you can say the relative moves between the cutter and the workpiece, our objective is to define those moves through G-code parameters. And of course, CNC stands for computer numerical control. So just go through these slides. NC system किस तरह develop हुए थे, and then so NC system was basically mechanical type of automation in which the cutter or the table would move in straight lines through a gear train arrangement. लेकिन mechanical automation का जो main drawback था, that was the round cuts or circular cuts, because mechanically it is very difficult to control a move of circular direction, or you can say कि अगर आपने कोई सर्कुलर ग्रूव बनाना हो या लड़े से फिलेटिंग का ऑपरेशन करना हो, तो ज़ाहिर है उसमें आपने फिर कटर को या वर्क पीस को सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करना होता है. मैकेनिकली that was a problem associated with NC technology, and then this problem basically led the developers to make another system, which was direct numerical control system. और डायरेक्ट numerical control system जो है वो it was only possible after the invention of the computer technology. So when computer came into the market, so then the manufacturers were able to come up with the equipment that would be controlled through a computer software rather than using a mechanical system, which was gear train arrangement. Sorry, गला थोड़ा सा खराब है आज. So just go through these theories. So basic component of NC system
that we discussed before the midterm, that any machine that is controlled through computer software has these three major components. Program of instructions hoga, then there will be a control unit. In machines it is known as a machine control unit, and then the actual equipment where you see the output of the program in the form of the cross slide moves on the table moves and the cutter moves. So program of instruction को part program कहा जाता है. That is basically executed by the machine control unit, and machine control unit basically controls those processes. And finally the processing equipment execute those processes, performs the processes. You know, तो ये फिगर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं मिड टर्म से पहले. डीएनसी सिस्टम जो है उसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि बिफोर आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर, सो इनिशियली जो आजकल जो हम कंप्यूटर देखते हैं, जो पीसीज जैसे हम कहते हैं, दैट वर दोज वर आल्सो वेरी एक्सपेंसिव और नॉर्मली हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था. तो what the industry did was that they took one host computer जिसको मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है ना. सो वो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर हुआ करता था, मेन कंट्रोलर, एंड देन दैट होस्ट कंप्यूटर was to be attached to multiple equipments directly. So if you want to, let us say, load a program, so that would be loaded on the host computer, and then the same program would be shared with different equipments to execute those programs. So the major, or you can say the main fault that was associated with direct numerical control technology was that suppose if the host computer goes down, so the whole system would stop. Or for example, if the data cables, let us say, those break down, so उसमें भी सिस्टम आपका हाल्ट हुआ हो जाया करता था, ठीक है. So these were the major problems that were associated with direct numerical control system. So for example, if the data cable goes down, so that would stop the system. If the host computer goes down, that would stop the system. So this was the issue associated with direct numerical control system. You know, so here is another graphical representation of direct numerical control system, in which you have a main computer, and that main controller was directly attached to multiple section of machines. So जो डेटा ट्रांसमिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम थे, वो मेजर इशू था डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल के साथ. So afterwards, after the development of the computer technology, so another system was developed by the manufacturer, and that was CNC, जो कि करंट टेक्नोलॉजी है और आपको नज़र आती है, ठीक है ना. So instead of having a host computer, what the manufacturer did was that they attached mini computers to the machine directly, जो कि आजकल आप देखते हैं हर एक, अगर एक CNC मशीन है तो उसके साथ अपना एक कंप्यूटर अटैच होता है. It is very easy to program individual machine as well, है ना. डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल में इंडिविजुअल मशीन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते थे. So that the issues that were associated with direct numerical control technology were addressed by this technology, CNC. So in CNC machine, you have a machine with its own computer, and you can load and unload multiple programs onto that machine, and the machines are capable of performing any type of operation
विद इन इट्स डोमेन, उसका जो भी डोमेन है उसमें कोई भी ऑपरेशन वो परफॉर्म कर सकता है। वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जो है वो इक्विपमेंट ही करता है, बट द डायरेक्शंस कम फ्रॉम द प्रोग्राम्स एंड program of instructions basically is executed by the machine control unit, and then it directs the machine to perform those operations. The problem associated with CNC machine was that what if, for example, if you have a factory and you want to load the same program on, suppose, 50 different equipments. So that problem was known as data management or time management problem. So for example, अगर आपके पास एक सिस्टम में 100 कंप्यूटर्स हैं, 100 इक्विपमेंट्स हैं, और उन सब इक्विपमेंट्स पे आपने एक ही प्रोग्राम लोड करना हो, what you would do is that you will individually go to each and every machine, you will load the program, and then the system will start running. Or for example, if you have same program running on multiple machines, and for example you want to edit that program, अगर आपने एक लाइन भी एडिट करनी हो, अगर एक वर्ड भी आपने एडिट करना हो, so you will have to reach each and every individual machine manually, और वहाँ पे आप एडिटिंग जो है वो करेंगे फिर। सो टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम जो है वो एसोसिएटेड था CNC टेक्नोलॉजी के साथ, विच वाज अगेन अ बिग इशू विद रेफरेंस टू इंडस्ट्रीज़, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में आपको टाइम जो है वो सेव करना होता है. सो दिस प्रॉब्लम then led the developers to make another system with the name distributed numerical control system. So distributed numerical control system का जो working principle है, it is exactly the same as that of the direct numerical control system, but the only difference between the two is that in direct numerical control system directly machine जो है वो host computer के साथ connected था. इस केस में the CNC machines were then grouped together and they were connected to the main host computer. So basically we have a secondary level of control over the program in between the host computer and the actual equipment, which is the computer of that equipment itself. सो जो डेटा मैनेजमेंट का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम में. सो डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम को भी DNC ही कहा जाता है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट DNC, सो यू शुड बी वेरी क्लियर दैट आइदर इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम और डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम. सो डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम वाज द ओल्डर टेक्नोलॉजी एंड दिस इज़ द करंट टेक्नोलॉजी दैट यू नॉर्मली सी विद इन द इंडस्ट्री. तो जो डेटा मैनेजमेंट का या टाइम मैनेजमेंट का इशू था वो यहाँ पे सॉल्व हुआ. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू एडिट अ प्रोग्राम और लोड a new program onto multiple computers, so simply you load that to the host computer, and through the host computer then it will be shared among the multiple equipments. So NC टेक्नोलॉजी में आपके पास मैकेनिकल कंट्रोल हुआ करता था. CNC में जो है वो फिर कंप्यूटर का रोल आ गया. इंडिविजुअल और डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम जो करंट टेक्नोलॉजी है उसमें यही CNC मशीन जो है वो आप अटैच कर लेते हैं एक होस्ट कंप्यूटर के साथ. सो बेसिकली यू इंक्रीज द लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल की जो एडवांटेजेस हैं या जो की फीचर्स हैं उसकी लिस्टिंग है. गो थ्रू दिस स्लाइड. So you can store more than one program at a time. Various forms of program input जो है वो आप input कर सकते हैं. You can easily edit the program. Cycles जो है या सब routine program में आप include कर सकते हैं. So interpolations आप कर सकते हैं. So these are different advantages associated with CNC technology. Categories को अगर आप देखें तो you can categorize CNC technology in multiple
categories, or each and every category covers the whole basically you can say canvas of the manufacturing technologies. यानी जो प्रोसेसेस जितने भी आप हैं आजकल, कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसमें सीएनसी टेक्नोलॉजी का यूज़ ना हो। राइट फ्रॉम द क्लीनिंग एंड फिनिशिंग मशीन्स को अगर आप देखें तो परफॉर्म्स ऑपरेशन लाइक जो कोटिंग है, वॉशिंग है, पेंटिंग है, लैपिंग का, बफिंग का, ग्राइंडिंग एट्सेट्रा। ग्राइंडिंग मशीन्स, लैपिंग मशीन, बफिंग मशीन सीएनसी में आपको मिलेंगी। इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल के जो इक्विपमेंट्स हैं, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल इक्विपमेंट्स आपको मिलेंगे। प्रेसिंग टेक्नोलॉजी में, फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी में, फाउंड्री टेक्नोलॉजी में, तो कोई भी आप टेक्नोलॉजी उठाएं, यू विल सी ब्रॉड रेंज ऑफ सीएनसी इक्विपमेंट। स्पेसिफिकली जो हमारा कंसर्न होता है वो मटेरियल रिमूवल प्रोसेसेस से रिलेटेड होता है, and the programs that we will develop will be associated with these types of processes. So CNC machine were initially strongly associated with those processes, which is the material removal processes associated with machines. So CNC mills हुए, CNC ड्रिलिंग मशीन है, CNC लेथ मशीन्स या साज या ग्राइंडर्स एक्सेट्रा। So the basic principle that you should know is about the coordinate system of the CNC machines. क्योंकि जब आप CNC मशीन प्रोग्रामिंग करेंगे तो you will basically define the movement policy of the cutter और द टेबल। क्योंकि बाज़ मशीन्स ऐसी हैं जिसमें कटर मूव कर रहा होता है, लाइक लेथ मशीन को आप देखें। सो लेथ मशीन में द वर्क पीस रिमे स्टे एट इट्स पोजीशन, उसको सिर्फ आप रोटेशन देते हैं लेकिन उसकी पोजीशन जो है वो वेरी नहीं करती। इट रिमेन्स एट इट्स ओन पोजीशन एट इट्स सेंट्रल एक्सिस जो कि चक होती है। और जो मूव्स आप देते हैं तो वो कटर को आप देते हैं, एंड कटर कैन बी मूव थ्रू द मूवमेंट ऑफ वेरियस स्लाइड्स, जो कि क्रॉस स्लाइड्स और कंपाउंड स्लाइड है। लीनियर मूव अगर आप करना चाहते हैं या क्रॉस सेक्शनल मूव आप करना चाहते हैं और डायगोनल मूव अगर आप देना चाहते हैं तो आप कटर को ही देते हैं। So in some machines you give movement to the cutter. In some of the machines you will give movement to the machine table. जिस तरह मिलिंग मशीन को आप देखें या जो प्लेनर मशीन है उसमें जो टेबल है वो मूव कर रहा होता है। There are certain machines in which you can give movement to the cutter as well to the table. So तीनों सिनारियोज जो है वो आपके पास हो सकती हैं, और तीनों सिनारियोज में आपने जो रिलेटिव मूवमेंट्स हैं इन बिटवीन द कटर एंड इन बिटवीन द कटर एंड द टेबल, सो वो मूवमेंट जो है वो आपने डिफाइन करनी होती है। तो ज़ाहिर है व्हेन यू वांट टू define those moves in computer software, so you will need some reference for that, and that reference is the coordinate system basically that will be defined by the machines or with the machine. So this जिस तरह AutoCAD में या Pro-E में आप 2-dimensional drawing करते हैं and you draw some entity, so you need a medium for that which is the coordinate system. So exactly जो आपका CNC मशीन होता है उसमें भी एक इन्वायरमेंट में, एक मीडियम में आपने वो मूव जो है वो डिफ़ाइन करनी होगी, एंड दैट मीडियम ऑफ मूवमेंट पॉलिसी इज़ द coordinate system that will be associated with a specific machine. So for coordinate system you have to then again go for the major categories of equipments. So in general अगर आप देखें तो दो कैटेगरीज में आप इक्विपमेंट को कैटेगराइज कर सकते हैं।
one type of equipment which will be designed for circular parts, और दूसरी कैटेगरी जो है वो prismatic part की हो सकती है. So basically it is the type of workpiece which will decide the category of the machine. For example, lathe machine है तो lathe machine जो है वो circular workpieces के लिए है. मिलिंग मशीन को अगर आप देखें या प्लानर मशीन को अगर आप देखें तो दे आर फॉर prismatic parts or rectangular parts. So then if you look into the dimension of circular parts, circular part में आपके पास दो dimensions हैं. ये second figure अगर आप देखें तो you will have the radial direction and longitudinal direction. ठीक है ना. So दो axes आपने define करनी होगी. अगर prismatic part की आप बात करते हैं तो prismatic part में आपके पास तीन dimensions होंगे. You will have some length, width and then height also. So if for example if you have circular jobs तो उसमें दो एक्सेस होंगी, बट व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दोज एक्सेस. अगर आप पास प्रिज्मेटिक पार्ट है या प्रिज्मेटिक मशीन है तो उसमें एक्सेस जो है पॉलिसी क्या होगी, व्हाट विल बी द थ्री एक्सेस एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दोज थ्री एक्सेसेस. सो फॉर दैट there is a standard which is followed by all of the industries throughout the world that manufacture the CNC machines. So जो standard XYZ axis होती है prismatic part के लिए. So let us start with figure E. So this is basically the machine table जो जिसे आप work table कहते हैं, और work part जो है वो आपका work piece होता है. So this notation is for all type of prismatic parts, or you can say the machines that will have three axes. So the general policy is that when you are standing in front of the machine table, तो अगर ये आपका मशीन टेबल है और आप उसके बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं, so the right side will always be the positive x and the left side of the table will always be negative x. So जो आपका यानी prismatic parts के लिए when you stand in front of the lathe machine, in front of the machine bed, so the longitudinal direction is considered as the x-axis, and right side of the table is positive x, and left side of the table move is the negative x. Similarly, when you are standing in front of the machine table, so going towards the table is the y direction, and going inside the table is y positive. Coming outside the table is y नेगेटिव. ठीक है ना. सो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप खड़े हुए हैं, सो ये आपका राइट साइड होगा, सो दिस विल बी द एक्स पॉजिटिव, ये आपका एक्स नेगेटिव होगा. गोइंग इनसाइड द टेबल, गोइंग टूवर्ड्स द स्पिंडल, दैट विल बी वाई पॉजिटिव. ठीक है ना. और अगर मूव वर्क पीस को आप बाहर की तरफ जो है वो मूव करेंगे टेबल को मशीन से, सो दैट विल बी वाई नेगेटिव. और Z जो है नॉर्मली आपका प्रिज्मेटिक पार्ट्स में वर्टिकल डायरेक्शन में होता है. ये में नॉर्मल जो CNC 3 एक्सेस मशीन्स आप देखते हैं, है ना. बट यू शुड रिमेंबर दैट Z डायरेक्शन इज़ ऑलवेज बी द डायरेक्शन ऑफ द स्पिंडल. सो नॉर्मली आपका जो 3 एक्सेस मशीन होता है उसमें वर्टिकल स्पिंडल होता है. सो दैट इज़ वाई नॉर्मल भी आपका जो Z एक्सेस होगा दैट विल बी इन द वर्टिकल डायरेक्शन, एंड गोइंग टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द स्पिंडल दैट विल बी Z पॉजिटिव, अवे विल बी Z नेगेटिव. ठीक है ना. सो अगर स्पिंडल जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो फिर हॉरिजॉन्टल एक्सेस आपका Z एक्सेस होगा. सो जिस तरह लेथ मशीन को अगर आप देखें तो लेथ मशीन में जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है दैट इज़ ऑलवेज द Z एक्सिस, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द स्पिंडल इज़ इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन.
सो दीज आर द लीनियर एक्सेसेस. सो कोई भी मशीन आप उठाएं तो उसमें आपको दो टाइप्स की मूव्स या एक्सेसेस जो है वो आपको मिल सकती हैं. एक तो लीनियर मूव्स हैं, एक जो है वो रोटेशनल मूव्स हैं. सो अगर फॉर एग्जांपल टूल को आप रोटेट करते हैं या टेबल को आप रोटेट करना चाहें, सो दैट इज़ आल्सो part of the CNC machines, CNC equipment, so you can rotate the table, you can tilt the table as well at certain angles. तो जो रोटेशनल एक्सेसेस हैं ज़ाहिर है वो भी आप जो जो लीनियर एक्सेस है एक्स वाई और जेड उसके रेफरेंस से ही आपने डिफाइन करनी होती है, ठीक है ना. सो यू कैन हैव रोटेशन अराउंड द एक्स एक्सेस, रोटेशन अराउंड द वाई एक्सेस, रोटेशन अराउंड द जेड एक्सेस. सो दे आर जो स्टैंडर्ड है थ्रू आउट द वर्ल्ड डिनोटेड बाय small a, b and c. So again then you will have to define the positive a, positive b और positive c के positive angle कौन सा होगा rotation और negative कौन सा होगा. So राइट हैंड रूल जो है वो आप यूज़ करेंगे दोनों केसेस में, चाहे आप लीनियर एक्सेसेस डिफ़ाइन करें या रोटेशनल एक्सेसेस डिफ़ाइन करें. सो लीनियर एक्सेसेस ये है कि फर्स्ट यू विल आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द स्पिंडल. सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस केस में आप देखिए अगर स्पिंडल जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है तो सिंपली पुट योर thumb in the direction of the spindle and the other two fingers will give you the positive x axis and y axis, ठीक है ना. तो इसी तरीके से अगर आप एंगल डिफाइन करना चाहें तो सिंपली पुट योर राइट थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव एक्सिस. यानी फॉर एग्जांपल अगर एक्स एक्सिस के अराउंड आप जो ए है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल देखना चाहें तो सिंपली जब आप थंब को इस डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे सो द कर्ल ऑफ योर फिंगर्स विल गिव यू द पॉजिटिव एंगल अराउंड दैट डायरेक्शन, ठीक है ना. सो अगर आप थंब को इस डायरेक्शन में देखें तो आपकी उंगलियां जो है वो इस डायरेक्शन में कर्ल करेगी. सिमिलरली दिस विल बी द पॉजिटिव बी डायरेक्शन एंड दिस विल बी द पॉजिटिव सी and inverse will be the negative C. So you in prismatic machines you basically have three axes, six axes in total, three linear axes and three rotational axes. So rotations around x, y, z are A, B and C. So they are denoted by A, B and C. And similarly for prismatic part you will have two axes. Normally अगर आप z direction देखें तो again you will have to point your finger, your thumb in the direction of the spindle. So direction of the spindle अगर आप देखें लेथ मशीन में तो that is horizontal और normally left side की तरफ होता है, ठीक है ना. So simply put your right thumb in that particular direction and the other will give you a positive जो middle है वो नॉर्मली आपको पॉजिटिव z देती है और जो फोर फिंगर है वो आपको y एक्सिस देती है. सो फॉर प्रिज्मेटिक पार्ट्स लुक फॉर द स्पिंडल डायरेक्शन, सिंपली पॉइंट योर मिडल फिंगर along the spindle. The other two fingers will give you the positive x and positive y. In case of the लेथ मशीन अगेन आपका जो z एक्सिस है वो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है. सो इन दैट केस यू विल डायरेक्ट योर मिडिल फिंगर हॉरिजॉन्टली towards the spindle and the other two fingers, that is the thumb and the other will give you the एक्सेसेस. और जो रेडियल एक्सेस है वो फिर आपका y भी हो सकता है, वो आपका z भी हो सकता है बिकॉज इट इज़ अ सर्कुलर जॉब. तो नॉर्मली जो स्टैंडर्ड है उसमें रेडियल डायरेक्शन जो है वो एक्स एक्सेस कंसिडर किया जाता है, ठीक है ना. सो इन लेथ मशीन्स द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल ऑलवेज बी z एक्सेस और जो आपका रेडियल डायरेक्शन है वो आपका एक्स एक्सेस होता है. तो अगर ये मूव्स आपने डिफाइन करने हो
तो इट विल बी थ्रू द जेड एंड एक्स कोऑर्डिनेट्स। और सिमिलरली प्रिज्मेटिक पार्ट्स के लिए आपने एक्स वाई और जेड तीनों जो जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो डिफाइन करने होंगे, ठीक है ना। जो वर्किंग पॉलिसी है या जो लीनियर और रोटेशनल एक्सिस की नोटेशंस है, वो जिस तरह मैंने कहा कि यू विल हैव टू यूज़ द राइट हैंड थंब रूल, यू नो, सो दिस इज़ दैट राइट हैंड थंब रूल। जो थंब है वो पॉजिटिव एक्स होता है, दिस इज़ पॉजिटिव वाई फोर फिंगर, और ये आपका पॉजिटिव जेड डायरेक्शन होता है, यू नो। सो अगर आपने फॉर एग्जांपल पॉजिटिव जेड डायरेक्शन किसी प्रिज्मेटिक पार्ट के लिए, सो सिंपली पॉइंट योर middle finger in the direction of the spindle, so that will be positive z, and then the other two will be positive x and positive y, and similarly for the two axis machine. रोटेशन का भी यही है कि सिंपली पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव वाई जेड, किसी भी डायरेक्शन के अराउंड आपने अगर आपने एंगल फाइंड करना हो तो सिंपली उस डायरेक्शन में अपना जो थंब है वो पॉइंट आउट करे, एंड द डायरेक्शन ऑफ द फिंगर्स, द कर्ल ऑफ द फिंगर्स विल गिव यू द रोटेशन अराउंड दैट पार्टिकुलर एक्सिस। अगर ये आपका एक्स एक्सिस है तो दैट विल बी पॉजिटिव ए, अगर वाई है तो पॉजिटिव बी होगा, अगर जेड है तो पॉजिटिव सी होगा, यू नो। सो दीज आर द स्टैंडर्ड नोटेशंस adopted by the manufacturers. फिर आपने मोशन कंट्रोल सिस्टम जो है वो डिफ़ाइन करना होता है। तो दो टाइप्स के मूव्स जो है नॉर्मली आप डिफ़ाइन करते हैं सीएनसी मशीन में, एक को पोजीशनिंग सिस्टम कहा जाता है, एक को कंटूरिंग सिस्टम कहा जाता है। पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम या पोजीशनिंग सिस्टम में आप कटर को सिर्फ पोजीशनिंग करते हैं, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई ऑपरेशन स्टार्ट करना हो और कटर जो है वो किसी और लोकेशन पे हो और सिंपली आपने एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट की तरफ कटर जो है वो मूव करना हो, तो एज योर ऑब्जेक्टिव विल बी टू सेव द टाइम, तो वो मूव जो है वो नॉर्मली आप एक स्ट्रेट लाइन में करना चाहेंगे। सो irrespective of the path के को क्या आपने प्रोफाइल जो है वो अडॉप्ट करना है। सो बेसिकली अगर आपने कोई कटिंग ऑपरेशन नहीं करना, आपने सिर्फ कटर को पोजीशन करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उसमें ये है कि आपने एक शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो अडॉप्ट करनी होगी, और दूसरा जो जो फीड रेट है, यानी जो जिस स्पीड से वो मूव करेगा, दैट शुड बी द मैक्सिमम स्पीड सो दैट यू कैन सेव द टाइम। सो एक तो पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम में ये होता है कि कटर जो है वो मैक्सिमम फीड रेट पे आप मूव करते हैं और सिंपली एक स्ट्रेट लाइन में उसको मूव करते हैं ताकि आपका टाइम जो है वो बच जाए। कंटूर पाथ सिस्टम में भी आप कटर को मूव करेंगे। सो पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम और कंटिन्यूस पाथ सिस्टम जो है उसमें दोनों में आप लीनियर मूव्स जो है वो दे सकते हैं। लीनियर मूव्स मींस यानी एक स्ट्रेट पाथ को आप अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो यू कैन मूव अ कटर इन द एक्स डायरेक्शन, इन द वाई डायरेक्शन, इन द जेड डायरेक्शन, और कम्बिनेशन ऑफ थ्री जो आपको एक डायगोनल मूव बता देगा, एंड दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। सो diagonally you can move a cutter or a table through point to point system or continuous path system, but the only difference is that point to point system में अगर आप define करेंगे तो the cutter will move at its maximum feed rate and it will always make a straight line, a straight shortest line. कंटिन्यूस पाथ सिस्टम में भी आपका मूव जो होगा कटर का, दैट विल बी अ लीनियर मूव, लेकिन वो एक कंट्रोल्ड फीड रेट के साथ होगा, ठीक है ना। सो क्योंकि आपने कटिंग करनी होती है, ठीक है ना। सो कंटूरिंग सिस्टम इसलिए इसे कहा जाता है कि यू विल हैव टू फॉलो अ स्पेसिफिक कंटूर, और वो कंटूर जो है वो आपका कटिंग की डायरेक्शन होगी। यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक वर्क पीस को कट करना है
तो उसका एक प्रोफाइल होगा, तो उस प्रोफाइल को आप फॉलो करेंगे। और कटिंग जब आप करते हैं तो यू हैव टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द कटर मूव बेसिकली, जिसको आप फीड रेट कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास कंट्रोल्ड फीड रेट्स जो है वो होंगे और वो आपने स्पेसिफाई करने होंगे। अदरवाइज एज फॉर एज द मूव्स आर कंसर्न, सो बोथ आर एग्जैक्टली द सेम। ये लीनियर मूव्स के लिए ही यूज़ होते हैं। लीनियरली आपने कटर को एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करना होगा, बट पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम में आप सिर्फ पोजीशन करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कटिंग यू सिंपली मूव द कटर। और यहाँ पे जो पाथ फॉलो होगी तो उस पाथ में कटिंग भी कर रहा होगा, ठीक है ना। एंड इफ अ कटिंग इज इन्वॉल्व, सो movement of the or the speed of the tool should be at some desired feed rate जो कि आपने डिफाइन करनी होती है। तो इसमें नॉर्मली बुक्स में आपको एग्जांपल मिलेगी ड्रिलिंग की, और इसमें मिलिंग या टर्निंग की। तो ड्रिलिंग का ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे आपने ड्रिल करना हो तो सिंपली आप टूल इंसर्ट करेंगे एक कंट्रोल स्पीड पे, और फिर जब टूल जो है वो आप रिट्रैक्ट करते हैं वर्क पीस से आप दूर ले आएंगे एंड देन यू मूव द कटर टू सम अदर लोकेशन, तो वो आपका फिर जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है और मैक्सिमम फीड रेट पे आप लेके जाते हैं, ठीक है ना। सो फॉर एग्जांपल ये आपके पास डिफरेंट लोकेशंस हैं और आपने ड्रिलिंग प्रोसेस करना हो, तो जो एग्जैक्टली जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, and this is the location where you will insert the tool inside the workpiece. So that will be contour system। और जो रिट्रैक्शन आप करेंगे और पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक आप मूव लेके जा रहे हैं, सो दैट मस्ट बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर टाइम सेविंग। यानी इस टूल को आप फॉर एग्जांपल पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक अगर आप मूव करना चाहें तो यू कैन फॉलो दिस पाथ एज वेल, ठीक है ना। सो इफ़ यू मूव द कटर first in the y direction and then in the x direction, so you can locate this point. You can move circularly, you can adopt a circular path, आप इस डायरेक्शन में भी आप आ सकते हैं, बट द ओनली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज इन बिटवीन 1 and 2 इज द स्ट्रेट लाइन, द डायगोनल स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। और इसमें इट इज़ दिस लाइन इज़ बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ द कटिंग ऑपरेशन, क्योंकि कटिंग जो जो ऑपरेशन है वो आपने पॉइंट नंबर 2 पे करना है, विच इज़ द ड्रिलिंग ऑपरेशन, है ना। हाँ, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपने कोई ग्रूव लगाना हो, आपने कोई कट लगाना हो लेट अस से इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तो देन डेफिनेटली यू विल हैव टू फॉलो दिस पाथ, और वो फिर आप कंटूर सिस्टम के थ्रू जाएंगे। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंटूर पॉइंट टू पॉइंट और contour path system. Point to point system में you will have to move the cutter from one location to another location irrespective of uh, the cutting process, the specified rate. Or in other words you can say that जब point to point system में आप move करते हैं, so that will be at the maximum feed rate, और जो कंटूर पाथ सिस्टम में आपने कटर को मूव करना होगा, so that will be some at some specified feed rates. For example, if you want to let us say profile milling आप करना चाहते हैं, this is your cutting, it is basically showing the top view, ठीक है। so अगर ये प्रोफाइल आपने कट करना हो, so you will definitely have to follow this specific profile, ठीक है ना। और ये मशीनिंग ऑपरेशन आपने एक स्पेसिफाइड फीड रेट के थ्रू जो है वो परफॉर्म करनी होगी। सो दिस इज़ कंटूरिंग सिस्टम। सो बेसिकली कंटूरिंग सिस्टम में आप कटिंग करते हैं, योर फीड रेट इज़ एट स्पेसिफाइड वैल्यू, और पोजिशनिंग सिस्टम में वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। वट एवर इज़ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द मशीन, नॉर्मली द कटर विल मूव एट दैट मच स्पीड और फीड रेट। डिफरेंट इंटरपोलेशन मेथड्स हैं जो कि मशीन्स में आपको मिलती है। लीनियर इंटरपोलेशन है, सर्कुलर है, हेलिकल है। जस्ट गो थ्रू दिस थ्योरी, ठीक है ना। सो मैं इस वीडियो में आई विल जस्ट गिव यू द बेसिक्स, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे। सो लीनियर इंटरपोलेशन में लीनियर मूव आप करते हैं, सो यू कैन मूव लीनियरली इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, ठीक है ना। सो लीनियर मूव मीन्स स्ट्रेट कट्स।
सर्कुलर इंटरपोलेशन जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। कर्व कटिंग, हेलिकल में जो हेलिकल ग्रूव्स हैं। पैराबोलिक क्यूबिक इंटरपोलेशन वो होती है कि फ्री फॉर्म कर्व्स, यानी किसी भी डायरेक्शन में आप अगर कटर को मूव करना चाहें तो एक्स वाई जेड साइमल्टेनियसली आपका चेंज होता जाएगा। फिर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में लोकेशंस होती है, यानी एक्स वाई जेड, वो एब्सोल्यूट पोजीशनिंग सिस्टम में भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, इंक्रीमेंटल पोजीशनिंग में भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल, यू शुड नो दीज पॉलिसीज। एब्सोल्यूट में यही होता है कि आपका एक फिक्स्ड ओरिजिन होता है एंड देन ऑल ऑफ द एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स आर डिफाइंड फ्रॉम दैट पार्टिकुलर ओरिजिन। इंक्रीमेंटल पोजीशनिंग में यही होगा जो आपका, यदि फॉर एग्जांपल आपने ओरिजिन से मूव किया लड़ा से x10 में, तो ये x10 जो है, जो करंट लोकेशन होगी, दैट विल बिकम एन ओरिजिन पॉइंट फॉर द न्यू पॉइंट। सो जिस तरह ऑटोकैड में आप एट द रेट वाली कमांड यूज़ करते हैं, तो एट द रेट और x और y आप देते हैं, तो बेसिकली इट विल टेक दैट करंट पॉइंट एज द ओरिजिन पॉइंट, और नेक्स्ट जो भी पॉइंट आप डिफाइन करेंगे तो इट विल बी फ्रॉम दैट, ठीक है। सो ये एग्जांपल के थ्रू मैंने इंक्रीमेंटल और जो एब्सोल्यूट पोजीशनिंग सिस्टम है वो डिफाइन की है कि अगर एब्सोल्यूट में आपने ये दो पॉइंट्स डिफाइन करने हो और इंक्रीमेंटल में ये दो पॉइंट्स डिफाइन करने हो तो क्या वैल्यूज़ होंगी एक्स और वाई। गो जस्ट गो थ्रू दिस एग्जांपल। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो डिस्ट्रीब्यूटेड और डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल की है, वो आपने समझनी होगी। करंट टेक्नोलॉजी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम होती है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम में आपके पास मल्टीपल मशीन्स होंगे विच विल बी अटैच टू अ सेंट्रल मेन फ्रेम कंप्यूटर। लेकिन वो मशीन जो शॉप फ्लोर पे आपको मिलेंगी, दैट विल नॉट बी कन्वेंशनल मशीन्स, दे विल बी CNC मशीन्स, यानी उनके साथ अपना भी होस्ट कंप्यूटर होगा, लोकल कंप्यूटर, ठीक है। So this is distributed numerical control configuration in which you will have a mainframe computer और फिर सैटेलाइट कंप्यूटर्स आपको मिलेंगे हर एक मशीन के साथ, ठीक है, जो कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल में आपको नहीं मिलेंगे। डायरेक्टली जो मशीन कंट्रोल यूनिट होता है उसके साथ ही उसकी अटैचमेंट होती है होस्ट कंप्यूटर की। डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिकल कॉन्फ़िगरेशन अगर आजकल आप देखें, चूँकि वायरलेस कम्युनिकेशन का ज़माना है, तो ईथरनेट बेस्ड DNC सिस्टम्स भी आपको मिलेंगे, वायरलेस DNC सिस्टम भी आपको मिलेंगे, एंड वायरलेसली यू कैन कंट्रोल द, यू विल हैव कंट्रोल ओवर द होल रेंज ऑफ इक्विपमेंट्स। सो मशीन मॉनिटरिंग जो है वो आजकल बहुत ही ईजी है थ्रू दीज कम्युनिकेशन, ठीक है ना। सो ईथरनेट बेस्ड और वायरलेस बेस्ड टेक्नोलॉजी दोनों जो है वो यूज़ होती है, ठीक है। नॉर्मली दिस इज़ द मूवमेंट पॉलिसी और द डेटा पॉलिसी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है ना। सो यहाँ पे आपके पास लोकल कंप्यूटर्स हैं, होस्ट मशीन्स होती हैं जो उसके पास अपना होस्ट कंप्यूटर होगा, इंडिविजुअल मशीन के पास। फिर सेल लेवल पे आपके पास जो है वो एक लोकल कंप्यूटर होता है, होस्ट कंप्यूटर, जिसके थ्रू आप डेटा कंट्रोल कर सकते हैं। देन यू कैन हैव अ फुल फ्लेज मेन फ्रेम सिस्टम थ्रू विच यू कैन कंट्रोल एनी एक्टिविटी विद इन द सिस्टम, ठीक है ना। सो बेसिकली एक कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम को अगर आप देखें तो यू हैव 3 लेवल्स ऑफ कंट्रोल्स, मशीन लेवल, फिर सेल लेवल एंड देन सिस्टम लेवल। एप्लीकेशंस को अगर आप देखें तो मशीन टूल एप्लीकेशन, मिलिंग, ड्रिलिंग, टर्निंग, बोरिंग, सब में आपको मिलती है। टर्निंग, ड्रिलिंग और मिलिंग और ग्राइंडिंग, ये नॉर्मल वो कटिंग ऑपरेशंस हैं जो कि नॉर्मली आप एक शॉप फ्लोर लेवल पे देखते हैं, मटेरियल रिमूविंग प्रोसेसेस के ऑपरेशन। सो ये आपके रेफरेंस के लिए है। यू शुड नो बेसिकली द टाइप ऑफ ऑपरेशन के, अगर टर्निंग, ड्रिलिंग या मिलिंग जो है वो क्वेश्चन में हो
और उसको आपने प्रोग्राम करना हो तो यू शुड एटलीस्ट नो द बेसिक प्रिंसिपल कि अगर टर्निंग है तो टर्निंग में एज आई सेड आपने ये मूव्स जो रिलेटिव मूव्स हैं इन बिटवीन द कटर एंड द वर्क पीस ये आपने डिफाइन करने होंगे एंड जेड एक्सिस विल ऑलवेज बी द एक्सिस ऑफ द वर्क पीस द एक्सिस ऑफ द मशीन ये स्पिंडल डायरेक्शन होती है तो ये आपका जेड एक्सिस होगा और जो रेडियल मूव है यानी जो क्रॉस सेक्शनल मूव है वो एक्स एक्सिस होगी सिमिलरली ड्रिलिंग को अगर आप देखें तो ये स्पिंडल की डायरेक्शन होती है ठीक है ना सो दिस विल बी द जेड एक्सिस एंड रिमेनिंग टू एक्सिस विल बी आपका जो जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है वो आपका एक्स एक्सिस होगा और जो क्रॉस सेक्शनल डायरेक्शन है दैट विल बी द वाई एक्सिस सिमिलरली फॉर द मिलिंग मशीन और द वर्टिकल मशीनिंग सेंटर हाँ अगर फॉर एग्जांपल मिलिंग मशीन है और मिलिंग मशीन में जो स्पिंडल डायरेक्शन है वो अगर वर्टिकल के बजाय हॉरिजॉन्टल हो तो फिर हॉरिजॉन्टल आपका जेड एक्सेस होगा और बाकी दो एक्सेस जो वर्टिकल और क्रॉस सेक्शनल है वो आपकी फिर एक्स और वाई एक्सेस बन जाएंगी सो यू शुड नो दीज बेसिक्स ऑफ द मशीन फॉर एग्जांपल ये है CNC हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन है तो इसमें अगर आप देखें तो आपका स्पिंडल जो है वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है सो दिस इज़ द जेड एक्सिस ठीक है ना सो हॉरिजेंटल डायरेक्शन इज़ द जेड एक्सिस so place your middle finger along this axis and the other two finger will give you the thumb will give you the positive x axis and the forefinger will give you the positive y direction ठीक है ना so अब इसको अगर आप देखें तो ये आपका z एक्सिस हुआ तो ये आपका x एक्सिस है जो टेबल का राइट है वो पॉजिटिव एक्स होगा लेफ्ट पॉजिटिव क्योंकि ये फ्रंट मशीन है अगर इस साइड से आप देखते हैं ठीक है ना और जो वर्टिकल डायरेक्शन है इस केस में दैट इज़ द वाई एक्सिस सिमिलरली फॉर एग्जांपल अगर ये टेबल जो है वो इस डायरेक्शन में लेट अस से रोटेट भी कर रहा हो तो ये कौन सा एंगल होगा ये स्वीवल अगर आप देखते हैं ठीक है ना सो इट इज़ बेसिकली अलॉन्ग द वाई एक्सिस ठीक है ना इसका ये एक्सिस है वर्टिकली वर्टिकल डायरेक्शन जो है वो आपका वाई है तो इट इज़ बेसिकली रोटेशन अराउंड द वाई एक्सिस तो ये आपका एंगल बी होगा तो अगर ये आपने प्रोग्राम में डिफाइन करना होगा सो दैट विल बी डिफाइंड थ्रू बी अगर फॉर एग्जांपल ये टेबल टिल्ट भी कर रहा हो ठीक है ना सो टिल्ट को अगर आप देखें तो टिल्ट विल बी अराउंड द एक्स एक्सिस ठीक है ना तो वो आपका फिर ए होता so this is how you have to specify the linear and rotational axes within the CNC machines. फिर करेक्टरिस्टिक्स है कि कहाँ पे आपकी यूज़ होती है तो नॉर्मली बैच प्रोडक्शन में रिपीट ऑर्डर्स में कम्प्लेक्स पार्ट ज्योमेट्रीज अगर आपके पास हो तो CNC टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ होती है ठीक है सो दीज आर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकती है there are some of the advantages disadvantages associated with NC पोजीशनिंग सिस्टम किस तरह होती है सो नॉर्मली कंट्रोल्स का सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है तो CNC टेक्नोलॉजी जो है वो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम ही है ठीक है ना उसमें यानी जो आपका मूव होता है वो रिकॉर्ड भी होता है मशीन के अंदर that is why they are more accurate so they are not part of basically the course आपका रेफरेंस है तो इसलिए एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है so anyhow you should know that the control system is a closed loop control system पार्ट प्रोग्राम जो है दैट इज़ आवर ऑब्जेक्टिव और CNC के लिए जो प्रोग्राम बना जाता है उसको पार्ट प्रोग्राम ही कहते हैं ठीक है ना और पार्ट प्रोग्राम में आपने जो रिलेटिव मूवमेंट्स है एज आई टोल्ड यू अर्लियर जो कटर और वर्क पीसेस के बीच में जो रिलेटिव मूव्स हैं वो आपने डिफाइन करने होते हैं ठीक है ना सो in a part program basically you have two types of data dimensional data और technological data डायमेंशनल डेटा में जो आपका साइज़ और शेप है वर्क पीस का उसकी बाउंड्रीज आप डिफ़ाइन करते हैं और टेक्नोलॉजिकल डेटा में आपका जो यानी जो ऑपरेशंस आपके परफॉर्म करने होंगे उसमें जो कटिंग स्पीड्स या जो फीड रेट है वो आपने डिफ़ाइन करना होता है और फिर थर्ड जो डेटा होता है उसमें वो मिसलिनियस फंक्शन का डेटा होता है
सो मिसलिनियस डेटा या मशीन डेटा भी उसे कहा जाता है। सो मशीन के जो अपने कंट्रोल्स हैं वो कंट्रोल करना जो है वो जो एम कोड्स जिसे आप कहते हैं या मिसलिनियस कोड कहा जाता है या मशीन कोड भी उसे कहा जाता है, उसके थ्रू हम कंट्रोल करते हैं। यानी जिस तरह कूलेंट ऑन करना, कूलेंट ऑफ करना, या स्पिंडल ऑन ऑफ करना, या टूल क्लैंप करना या अनक्लैंप करना, तो दे विल बी कंट्रोल थ्रू मिसलिनियस डेटा। ठीक है ना। सो बेसिकली एक प्रोग्राम में आपको डायमेंशनल डेटा, टेक्नोलॉजिकल डेटा, मिसलिनियस डेटा मिलता है। The CNC program will consist of these three entities. पूरा प्रोग्राम जो है उसको पार्ट प्रोग्राम कहते हैं। फिर उसमें ब्लॉक्स आपको मिलेंगे और हर एक ब्लॉक में आपको इंडिविजुअल वर्ड मिलेगा, करेक्टर मिलेगा। सो वर्ड इज़ बेसिकली ए सीक्वेंस ऑफ करेक्टर। यानी वाई एक्सेस पोजीशन आपने डिफाइन करनी हो, फॉर एग्जांपल x100 आप लिखते हैं या y50 आप लिखते हैं, सो इट इज़ वन करेक्टर। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखूँ G00 x100 y100 z00, सो इट इज़ अ फुल लाइन। एक पूरी लाइन जो एक प्रोग्राम में आपको मिलती है, दैट होल लाइन विच विल बी बेसिकली अ सेट ऑफ वर्ड्स इज़ नोन एज अ ब्लॉक। सो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म वन कंप्लीट इंस्ट्रक्शन। और फिर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस जब आपस में आप ग्रुप करते हैं तो वो एक पूरा प्रोग्राम आपको बना लेता है, एंड दैट इज़ नोन एज पार्ट प्रोग्राम। सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, सीक्वेंस ऑफ दोज ब्लॉक्स इज़ बेसिकली नोन एज द पार्ट प्रोग्राम। ब्लॉक फॉर्मेट जो है ये प्रोग्राम्स में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये विद इन द प्रोग्राम ही जो फॉर्मेट है वो मैं डिस्कस कर लूँगा। बट जस्ट गो थ्रू दीज स्लाइड्स। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि जो एन है, सीक्वेंस नंबर क्या होता है, जी कोड पैरामीटर और एस कोड पैरामीटर्स, और ये फॉर्मेट क्या है। सो ये फॉर्मेट जो है नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। CNC कोड जो है उसमें अगर आपने मूव्स जो है वो आपने कंट्रोल करने हो तो नॉर्मली जो जो रिलेटिव मूव्स हैं इन बिटवीन द कटर्स एंड द टेबल, दे आर डिफाइंड थ्रू जी कोड्स। ठीक है ना। सो जी कोड जो है वो रैपिड मूव्स के लिए भी, यानी जो पोजीशनिंग सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम मैंने आपको बताया था, उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ इट फॉर फीड मूव्स। अगर एक कंट्रोल स्पीड पे आपने मूव करना हो, रेडियल फीड्स के लिए आप जी कोड यूज़ करेंगे। ड्वेल्स, अगर आपने फॉर एग्जांपल इन बिटवीन टू ऑपरेशंस आपने एक टेम्परेरी ड्वेल पीरियड रखना हो, पास करना हो मूव को, तो वो जी कोड के थ्रू आप करेंगे। रफिंग कट्स, प्रोफाइलिंग, फिनिशिंग कट्स। सो यानी जो रिलेटिव मूव्स हैं, या यानी रिलेटिव मूव मीन्स अगर आपने टेबल को मूव करना हो या आपने कटर को मूव करना हो, सो मूव से रिलेटेड जितने भी कमांड्स होंगे दे विल बी कंट्रोल थ्रू जी कोड। वो जी कोड्स ही होंगे, जी कमांड्स ही होंगे। एम कोड जो होंगे, एज आई सेड दैट दे आर नोन एज मशीन फंक्शंस और मिसलिनियस फंक्शंस भी कहते हैं उनसे। ठीक है ना। सो मशीन फंक्शंस में आप जो एम कोड्स हैं, दे आर बेसिकली यूज टू कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ द मशीन इटसेल्फ, विच आर स्पिंडल ऑन ऑफ, टूल चेंजेस, कूलेंट ऑन ऑफ, प्रोग्राम स्टॉप आपने करना हो, या टूल आपने क्लैम्प करना हो, या आपने टूल चेंज करना हो। ठीक है ना। सो ये मशीन के अपने फंक्शन हैं। या आपने स्पिंडल स्पीड जो है वो वेरी करना हो, तो वो आप एम कोड के थ्रू जो है वो कंट्रोल करेंगे। ठीक है ना। और फिर कोड्स के साथ जो है वो आप डिफरेंट लेटर्स जो है या उसको एड्रेसेस कहते हैं, वो भी आपने स्पेसिफाई करने होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल जी कोड है तो जी के साथ हम नॉर्मली एक्स वाई और जेड ऑर्डिनेट्स जो है वो भी डिफाइन करते हैं, या ए बी सी आप कह लें। सो अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ G00 और फिर एक्स सम वैल्यू, वाई सम वैल्यू, ठीक है ना। सो ये स्पेसिफायर्स जो हैं बेसिकली दे विल बी यूज्ड इन कम्बिनेशन विद द जी कोड पैरामीटर्स एंड एम कोड पैरामीटर्स। ठीक है ना। सो जी कोड और एम कोड जो है उसके साथ साथ आपको जो जो स्पेसिफायर्स है, स्पेसिफायर्स आर एक्स वाई जेड आई जे के और बाकी जो है लेटर्स प्रोग्राम में यूज़ होते हैं,
वो भी आपको देखने में मिलेंगे. सो दे आर बेसिकली द लिस्ट दैट आर अवेलेबल इन द ग्रूअर बुक. ठीक है ना. सो ये रेडिली अवेलेबल है. वही लिस्ट जो है मैंने डाली हुई है इसमें. ये भी ग्रूअर की ही बुक से है. सो बेसिकली दे आर द वर्ड प्रीफिक्सेस, द स्पेसिफायर्स दैट आर यूज्ड, और उनका फंक्शन बताया गया है कि जी का क्या फंक्शन है और जो स्पेसिफायर्स हैं उनका क्या फंक्शन है. तो ये एक दफ़ा आप रीड कर लें, सो दैट यू शुड हैव एटलीस्ट द बेसिक आइडिया अबाउट दो स्पेसिफायर्स. इन एफ़ को फॉर एग्जांपल आप देखते हैं तो एफ़ इज़ नॉर्मली यूज फॉर फीड रेट. अगर फीड रेट आपने डिफ़ाइन करना हो तो एफ़. अगर स्पिंडल स्पीड आपने डिफ़ाइन करना हो तो एस के थ्रू हम करते हैं. टूल चेंज आपने परफॉर्म करना हो तो टूल के थ्रू हम करते हैं. सो ये टी का प्रीफिक्स जो है ये टूल्स के लिए भी यूज़ होता है, ये टाइम के लिए भी यूज़ होता है. लेकिन वो फिर मशीन किस तरह आइडेंटिफाई करेगा, इसके साथ आप एम कोड और जी कोड्स जो जो रेडिली अवेलेबल कोड है वो भी आपने स्पेसिफाई करना हो. ठीक है ना. तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं M6 के साथ टी लिखता हूँ, M6 और लड़े से T2, तो वो T2 को टूल नंबर 2 लेगा. ठीक है ना. तो अगर मैं जी कोड या किसी और कोड के साथ स्पेसिफाई करता हूँ तो हो सकता है टूल के बजाय वो उसको टाइम कंसिडर करे. ठीक है ना. सो बाज़ औक़ात एक स्पेसिफायर जो है उसके डबल मीनिंग भी हो सकते हैं. ठीक है ना. एंड दैट मीनिंग विल डिपेंड अपॉन द कोड to which it will be added. So नॉर्मली टी जो है वो टूल्स के लिए हम स्पेसिफाई करते हैं. ठीक है ना. डी इज़ फॉर टूल डायमीटर एटसेट्रा. ठीक है ना. सो जस्ट गो थ्रू दैट लिस्टिंग और इनकी डिटेल आप पढ़ लें. फिर जी कोड पैरामीटर्स हैं और उनकी डिटेल्स गिवन है कि G00 का क्या मतलब है, G01 का मतलब क्या है. सो आवर मेन कंसर्न इन द प्रोग्राम, क्योंकि हम ज़्यादा एडवांस लेवल पे नहीं करेंगे, तो G0, G1 और G2, G3 ये 4 कोड जो है वो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं इस लेवल पे. ठीक है ना. सो बट इट गिव्स यू द होल लिस्ट ऑफ द जी कमांड्स दैट यू विल नॉर्मली यूज़. फिर एम कमांड की लिस्ट है. ठीक है ना. और जो प्रोग्राम के सीक्वेंशियल स्टेप होते हैं वो स्टेप्स गिवन है कि आपने क्या करना होगा. तो G00 जो है वो जो पोजीशनिंग सिस्टम मैंने आपको बताया था कि उसके लिए आप जो है वो स्पेसिफाई करते हैं G00. G00 में अगर आपने लीनियरली टूल को मूव करना हो, आपने पोजीशन करना हो, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये वर्क पीस है लेथ मशीन में अगर आप देखते हैं. तो फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ द कटर लोकेशन, एंड इफ़ यू वांट टू मूव द कटर फ्रॉम दिस इनिशियल लोकेशन टू लेट अस से दिस पोजीशन, और आपने फिर प्लेन टर्निंग का ऑपरेशन परफॉर्म करना हो मटेरियल. सो ये सिर्फ पोजीशनिंग है, ये मूव है. फिर इस पॉइंट के बाद अगर आपने ऑपरेशन स्टार्ट करना हो, सो दैट शुड बी एट कंट्रोल्ड स्पीड. ठीक है ना. सो ये इनिशियल मूव जो है ये सिर्फ पोजीशनिंग है, एंड यू विल ट्राई टू मूव द कटर फ्रॉम दिस लोकेशन टू दिस एट द मैक्सिमम फीड रेट, ताकि आपका कम से कम टाइम लगे और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो. सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज़ दैट डायगोनल डिस्टेंस. तो इसके लिए आप G0 की कमांड यूज़ करते हैं. ठीक है ना. और फॉर्मेट उसका यही है कि आप G00 लिखेंगे और फिर जो भी आपके कोऑर्डिनेट्स हैं. सो अगर लेथ मशीन है तो लेथ में ये आपका Z एक्सेस होगा, ये आपका X एक्सेस होता है. सो यू हैव टू डिफाइन द X एंड Z वैल्यू. ठीक है ना. सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इनिशियल पॉइंट जो है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से आपने यहाँ तक मूव करना हो, सो दैट विल बी G00 और X 150 और Z 100 अगर है तो आप सिंपली लिखेंगे G00 X 100 और Z 100. ठीक है ना. सो कटर आपका यहाँ से यहाँ तक मूव कर जाएगा. फिर अगर यहाँ से आपने यहाँ तक मूव करना हो, सो दैट विल बी, अगर एब्सोल्यूट पोजीशनिंग में आप परफॉर्म कर रहे हैं तो इट विल बी X 200 और Z 200. तो यही फॉर्मेट होगा. यू विल राइट G00 X 200 और Z 200. दिस इज़ अनदर सिस्टम जो कि नॉर्मली एडवांस लेवल पे हम यूज़ करते हैं. तो इंस्टेड ऑफ X एंड Z वी कैन यूज़ U एंड W आल्सो. बट वी विल स्टिक आवर सेल्फ विद द X एंड Z पॉलिसी. ठीक है ना.
सो सो दिस इज G00, ठीक है ना। सो G00 में आपका लीनियर मूव होगा, दैट कैन बी अ डायगोनल मूव, इट कैन बी इन द x डायरेक्शन, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन। हाउएवर द मूव विल बी एट द मैक्सिमम फीड रेट एंड देयर विल बी नो कटिंग इन्वॉल्व्ड, ठीक है ना। सो वही एग्जांपल है, अगर फॉर एग्जांपल आपने कटर यहाँ से यहाँ तक मूव करना हो तो देयर इज़ नो कटिंग इन्वॉल्व इन दैट। सो इसके लिए फिर आप G00 ही यूज़ करेंगे। यू कैन मूव दिस कटर इन G1 या G2 में भी आप मूव कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपने फीड रेट भी डिफाइन करना होगा। सो इफ़ यू डिफाइन अ फीड रेट, सो दिस मीन्स दैट यू आर रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ द कटर मूव। सो वो इर्रिस्पेक्टिव वो यानी गैर ज़रूरी है एक टाइम जो है फ्रेम इन्वॉल्व करना जिसमें आप कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे, ठीक है ना। सो दिस इज़ G0 पॉलिसी इन विच, अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक कटर आ रहा है, कोई ऑपरेशन नहीं है, यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं है। सो द कटर शुड मूव एट इट्स मैक्सिमम फीड रेट। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसमें कोई मूव नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ आप पोजीशन कर रहे हैं वर्क पीस, यानी इस पोजीशन से इस पोजीशन। सो यहाँ पे आप अब देखें ये आप डायगोनल पाथ भी कर सकते हैं। और ये दो और पाथ है, यानी ये पहले एक्स डायरेक्शन में गया है, फिर वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में आया है, ठीक है ना। देखिए एक्स एक्सिस में जा रहा है सेकंड को अगर आप देखें, और फिर Z30 में आ रहा है, ठीक है ना। सो ये डायगोनल भी हो सकती है, जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखें। सो दिस विल बी अप टू यू कि किस तरह आप जो है वो G00 की कमांड यूज़ करते हैं। हाउएवर G00 में आपने यहाँ पे अगर आप फॉर्मेट देखें तो G00 एक्स वाई और जेड वैल्यू होगी, लेकिन इसमें एफ का प्रीफिक्स जो है वो आपको नज़र नहीं आएगा। एफ इज़ फॉर फीड रेट, ठीक है ना। सो ऑटोमेटिकली जब मशीन G00 रीड करेगा तो इट विल टेक द मैक्सिमम फीड रेट ऑफ द या द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द मशीन। G01 की अगर पॉलिसी आप देखें तो वही पॉलिसी होती है। यू विल राइट G01 फिर एक्स वाई जेड, और साथ में यहाँ पे आपने एफ़ की वैल्यू फिर देनी होगी। सो फीड रेट यहाँ पे अगर मैं देखूँ 0.2, सो 0.2 मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन होगी, या 0.2 मिलीमीटर पर मिनट हो सकती है। सो दो मोड्स होंगे, या तो पर रिवोल्यूशन मोड होगा या पर मिनट फीड रेट होगा, ठीक है ना। सो उसके लिए अपना मशीन कोड होता है जो कि प्रोग्राम में आप स्पेसिफाई करते हैं। एवर G01 को अगर आप देखें या G00 को आप देखें तो दोनों जो है वो लीनियर इंटरपोलेशन के लिए ही आप यूज़ करते हैं। सो लीनियरली यू विल move the cutter from one point to another point, but in G00 policy the move will be at the maximum feed rate, और जो G01 है उसमें एक स्पेसिफाइड फीड रेट जो है वो आपने करना होगा। सो फॉर एग्जांपल अगर आपके प्रोग्राम में है G01 और X150 या Z100 आप लिखते हैं और साथ में F की वैल्यू आप स्पेसिफाई नहीं करते, सो व्हेन यू विल रन दिस प्रोग्राम इट विल गिव यू एन एरर मैसेज, है ना। इस लाइन को जब वो रीड करेगा तो आपका प्रोग्राम जो है वो हाल्ट हो जाएगा, एंड मैसेज आपके पास आ जाएगा कि इस प्रोग्राम में एरर है और आगे जो है वो प्रोसीड नहीं कर सकता, है ना। सो इफ़ इट इज़ G01, सो एफ़ का प्रीफिक्स जो है उसके साथ लाजमी होना चाहिए, अदरवाइज प्रोग्राम में एरर आएगा आपका, ठीक है। सो इस कोड को अगर आप देखें तो एग्जैक्टली वही कोड है जो G0 में आपने स्पेसिफाई किया था। G00 एक्स और जेड की वैल्यू है, ये क्योंकि टू एक्सेस मशीन है तो ये जेड एक्सेस है, ये आपका एक्स एक्सेस है। तो एक्स और जेड की वैल्यू आप देते हैं, सो सिंपली द कटर विल मूव टू दिस न्यू लोकेशन। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो G1 है और फिर वही एक्स और जेड की वैल्यू आप स्पेसिफाई करते हैं, लेकिन साथ में फीड रेट आपने स्पेसिफाई करना होगा। सो अगर ये एफ प्रीफिक्स अवेलेबल ना हो G1 के साथ तो एरर ही आएगा,
ठीक है ना। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने कटर को यहाँ से यहाँ तक मूव करना है और ये कटिंग ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है, सो दिस कटिंग शुड बी एट सम कंट्रोल्ड फीड रेट। तो ये फिर आप G01 के थ्रू, ये G00 के थ्रू आप नहीं कर सकते हैं। इफ़ आई राइट 00 और ये Z-30 में लिख दूँ, so the cutter will follow the same path और सेम ही डायरेक्शन में मूव करके इसी पॉइंट तक ही आएगा, बट इट विल बी एट द मैक्सिमम फीड रेट। मैक्सिमम फीड रेट में हो सकता है कि ये बहुत ही हार्ड मटेरियल हो, तो वाइब्रेशंस होंगी, या तो कटर टूट जाएगा, या आपके पास सरफेस फिनिश जो है वो बहुत ही रफ़ आएगी। सो बेसिकली जितने भी कटिंग ऑपरेशंस हैं जो लीनियर मूव्स हैं उसके लिए G1 ही आप स्पेसिफाई करेंगे और उसका अपना एक फीड रेट होगा। सो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में अगर आपको याद हो तो जो कटिंग स्पीड का है वो एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है, पाई डी एन वाला। सो कटिंग स्पीड इज़ इक्वल टू पाई डी एन डिवाइडेड बाय 1000। और ये कटिंग स्पीड जो है बेसिकली फीड रेट जो है इट डिपेंड्स ऑन द पाई डी एन का मतलब है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, और डी जो है वो डायमीटर ऑफ द वर्क पीस। या अगर सर्कुलर कट्स आप कटर्स आप यूज़ कर रहे हैं, तो जिस तरह इन केस ऑफ मिलिंग है या ड्रिलिंग है, तो उसमें डायमीटर ऑफ कटर होता है वो, ठीक है ना, और कटर की आरपीएम। सो लेथ मशीन में एन जो है वो आरपीएम ऑफ द वर्क पीस है, और डायमीटर जो है वो भी डायमीटर ऑफ द वर्क पीस है। So the cutting speed or the feed rate greatly depends on the diameter of the workpiece and the RPM. So जो RPM होगी, जो diameter होगा, उसके मुताबिक ही आपका feed rate होगा और वो आप यहाँ पे specify करेंगे. So that is why it is very important to know the concept of G00 and G01. So G01 जो है वो positioning के लिए use होती है, and the cutter will move at the maximum feed rate. G01 में again the cutter will move linearly from one point to another point, uh, but at controlled feed rates, at specified feed rates. सो जिस तरह ये मूव्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल ये आप देखें तो ये लीनियर मूव ही है, यानी जेड डायरेक्शन में ही कटर मूव कर रहा है, लेकिन एक कंट्रोल्ड फीड रेट पे। दिस इज़ बिकॉज इट इज़ अ कटिंग ऑपरेशन। सो ये G1 के थ्रू आप स्पेसिफाई करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखिए फेसिंग का ऑपरेशन हो रहा है, अगेन इट इज़ लीनियर मूव, ठीक है ना। सो फेसिंग जो है वो भी लीनियर मूव है, और जो प्लेन टर्निंग है वो भी आपका लीनियर मूव है। तो ये G01 के थ्रू आप डिफाइन करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो वर्टिकल मिलिंग मशीन है वो, या वर्टिकल मशीनिंग सेंटर है, तो इसमें भी जो जो पॉकेट मिलिंग है उसमें अगर आप देखें तो ये फाइनल कट है, और एक्स और वाई डायरेक्शन में कटर मूव हो रहा है, एंड सिमिलरली जब इंसर्ट हो रहा है तो वो जेड डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये तीनों मूव्स जो है वो आपने G1 के थ्रू फिर स्पेसिफाई करनी होगी। So this is the difference between G00 and G01। और G02 और G03 जो है वो सर्कुलर कट्स के लिए आप यूज़ करते हैं, ठीक है। सो जो यानी G1 का जो फॉर्मेट है वही फॉर्मेट G2 और G3 का ही होगा। यानी यू विल राइट G2 और G3, और उसके साथ आपने X, Y और Z की लोकेशन देनी होगी, फीड रेट आपने स्पेसिफाई करना होगा, बट उसके साथ आपने रेडियस भी डिफाइन करना होगा। सो रेडियल यानी जो भी आर्क आपने डिफाइन करनी होगी, तो उस रेडियस वैल्यू की वैल्यू आपने, सो ये फॉर्मेट होगा G2 X होगा, फिर Z होगा, फीड रेट होगा, और R की वैल्यू होगी। सो इसमें R एडिशनल स्पेसिफायर जो है वो आपका आ जाएगा। और रेडियल मूव में G2 और G3 का यही है कि अगर G2 है तो द कटर विल मूव इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अगर G3 है सो इट विल मूव इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना। सो फॉर एग्जांपल अगर आपका कटर यहाँ पे है और यहाँ से यहाँ तक आप आ रहे हैं, इफ दिस इज पॉइंट नंबर 1 और ये आपका पॉइंट नंबर 2 है, सो दिस विल बी G2। और अगर फॉर एग्जांपल दिस विल बी G3 काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर फॉर एग्जांपल ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है कटर का, और ये आपका एंड पॉइंट है, और आपने ये पाथ फॉलो करनी है
तो फिर वो G2 होगी, यानी क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द कटर के किस डायरेक्शन में आपने कटर को मूव करना है, ठीक है ना। सो अगर फॉर एग्जांपल P1 से P2 तक आपने जाना है, सो दिस इज़ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो ये आपका G2 कमांड होगी। और अगर यही पाथ मैं फॉलो करना चाहूँ बट कटर यहाँ पे है और यहाँ से यहाँ तक मैं मूव करना चाहूँ, तो इट विल बी देन G3, ठीक है ना। सो जिस तरह ये है, अगर ये आपका पॉइंट P2 है और ये आपका पॉइंट P1 है और ये डायरेक्शन आपने फॉलो करनी है, तो ये आपका G3 है। लेकिन अगर मैं P2 से P1 तक जाना चाहूँ, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये G2 के थ्रू आपने, तो जो जो आपने आर्क अगर आपने कोई फॉलो करना हो, तो उसमें आपने क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो डिफाइन करनी होगी। ये रेडियस जो है ये डायरेक्टली आर की वैल्यू से भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, एंड यू कैन गिव दिस टू डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर इस आर का लेटर से ये सेंटर पॉइंट है, तो इस सेंटर पॉइंट से एक्स डायरेक्शन में यानी एक्स डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस है और वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस है, तो ये वैल्यूज़ भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। और इन वैल्यूज़ को हम आई जे के वैल्यूज़ देते हैं, ठीक है ना। सो आई is the along x axis, j will be along y axis और k जो है वो along z axis होती है। सो ये भी एडवांस प्रोग्रामिंग में नॉर्मली यूज़ की जाती है। वी विल स्टिक आवर सेल्व्स ओनली टू द आर वैल्यूज, ठीक है ना। सो आई जे के जो है वो मैं यहाँ इस क्लास में हम नहीं करेंगे, सिंपल आर की वैल्यू देंगे, दैट विल बी गिवन, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में आता भी है तो आर की वैल्यू गिवन होगी डायरेक्टली। लेकिन उसमें आपने ये ख्याल रखना होगा कि अगर G2 आप स्पेसिफाई करते हैं तो इट शुड बी क्लॉकवाइज मूव। अगर आप G3 के थ्रू एक आर्क स्पेसिफाई करते हैं, सो दैट विल बी काउंटर क्लॉकवाइज मूव, ठीक है ना। और वो उसके लिए फिर आपने कटर की डायरेक्शन देखनी होगी कि कटर जो है वो किस डायरेक्शन में बेसिकली आपका मूव कर रहा है, तो उसी डायरेक्शन के मुताबिक आपने G2 और G3 जो है वो स्पेसिफाई करनी होगी, ठीक है ना। तो फॉर्मेट वही होगा कि जो G01 में आप यानी फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक आते हैं, सो दैट मूव विल बी G01। और फिर यहाँ से यहाँ तक आपकी जो मूव है वो फिर जी सर्कुलर मूव है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कटर यहाँ से आ रहा है, यहाँ तक लीनियर मूव किया और फिर यहाँ से आपने ये फिलेट लेटर से बनाना है, सो इट इज़ इन दिस केस इट इज़ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना। सो यहाँ पे आपने फिर G2 स्पेसिफाई करना हो। और फॉर एग्जांपल आपका कटर यहाँ पे है, आपने ये ऑपरेशन किया फेसिंग का और उसके बाद यहाँ पे आप आ रहे हैं, तो इसको अगर आप देखें तो ये आपका G3 मूव है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव आ रहा है। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द कटर। सो G2 और G3 जो है इसमें सिंपली जो सर्कुलर मूव्स हैं, अगर कोई रेडियल मूव इन्वॉल्व हो तो वो नॉर्मली फिर या G2 और या G3 के थ्रू आप परफॉर्म करेंगे। G2 जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए है, G3 जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए है। सो इट इज़ डायरेक्शन ऑफ द कटर बेसिकली। तो एक पूरा ब्लॉक फॉर्मेट जो होगा आपका, इट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल वर्ड्स, और उन वर्ड्स में आपको जी कोड भी मिल सकते हैं, आपके पास एम कोड भी होगा, आपके पास एक्स वाई जेड के कोड्स भी हो सकते हैं। एज आई सेड आई जे के की वैल्यू अगर आर की वैल्यू के बजाय आप यानी जो सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस है वो डिफाइन करना चाहें, तो या तो आई जे के होगी या आर की वैल्यू होगी। सिमिलरली फीड की वैल्यू होगी स्पिंडल से रिलेटेड, और कोई कमांड हो सकता है, टूल से रिलेटेड हो सकता है, एम फंक्शन हो सकता है, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि एक ब्लॉक जो है यानी एक लाइन जो है उसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही स्पेसिफायर जो है वो आप यूज़ कर सकें। यू कैन यूज़ मल्टीपल स्पेसिफायर इन अ सिंगल ब्लॉक आल्सो, यानी एक लाइन में मैं जी कोड भी यूज़ कर सकता हूँ और उसी लाइन में मैं एम कोड भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है ना। अगर
उन दोनों का आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना बन रहा हो, सो आई कैन यूज दैट। सो ये मैं एक लाइन में भी लिख सकता हूँ और दो सेपरेट लाइंस में भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। सो द CNC machine will accept both the formats. So then it is a simple example which is showing a simple CNC program, और उसमें G0 और G01 का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया है। तो दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। So thank you very much.